بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کہانی پوائنٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ آج میں آپ کے لیے دلچسپ اور سنسنی خیز کہانیاں لائی ہوں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملیں سب سے پہلے۔ میری کام والی زرگنا کا تعلق وزیرستان کے ایک چھوٹے علاقے سے تھا۔ وہ اکثر عجیب و غریب باتیں کرتی رہتی تھی۔ میرے پاس ایک دن بیٹھی ہوئی تھی تو اس کے بازو پر 2 چھوٹے چھوٹے نشان دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا، زرگنا یہ کیا ہے؟ کیا تمہیں کسی چیز نے کاٹا ہے؟ بولی کہ نہیں باجی، کاٹا نہیں، کٹوایا ہے۔ کیا مطلب؟ تم نے خود کٹوایا ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ باجی پاگل نہیں ہوں، بس یہ ہمارے ہاں رسم ہے۔ کیا رسم ہے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا تو زرگنا نے مجھے وہ بات بتائی کہ سن کر میرے 14 طباق روشن ہو گئے۔ ہمیں شادی سے پہلے ابا ہم سب بیٹیوں کو بچھوؤں سے کٹواتے تھے۔ تم پاگل ہو گئی ہو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں تو اس پر تقریباً چلا اٹھی کہ ایسے کون کرتا ہے، پر اس کے بازو پر موجود نشان اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ کہنے لگی کہ وزیرستان میں اخوان عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، ہم نے انہی سے یہ رسم دیکھی ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے اس نے اپنی کہانی سنائی۔ میں وہی کہانی من آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ میرا نام زرگنا ہے، 16 سال کی تھی۔ میرے گھر میں ماحول تبدیل ہونے لگا تھا، اگرچہ آس پاس کا ماحول بھی بہت زیادہ بدل گیا تھا، لیکن سب سے پہلے جو بات میں نے محسوس کی تھی وہ ابا کا رویہ تھا۔ ایک دن ابا گھر آئے تو بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ پوچھنے لگے کہ تمہاری بہن کہاں ہے؟ وہ میری بڑی بہن گل افشا کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں نے ان کو بتایا کہ وہ اوپر چھت پر گئی ہے۔ یہ سنتے ہی ابا کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ غصے سے اوپر گئے سیڑھیاں چڑھتے۔ ان کے قدموں کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت زیادہ غصے میں ہے۔ میں نے دیکھا باجی کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ ابا باجی کو چھت سے گھسیٹ کر نیچے لے آئے اور پھر میرے سامنے ہی ایک کمرے میں لے گئے۔ ابا نے باجی کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ یہ ماحول دیکھ کر مجھ پر بہت ہی دہشت طاری ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ ابا ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ باجی تو ابا کی پسندیدہ اولاد تھیں۔ وہ اکثر باجی کے لیے انار اور انگور لایا کرتے تھے، سب سے پہلے باجی کو ہی دیتے تھے، پر آج باجی پر یہ ستم کیوں؟ میں بھاگ کر دروازے کے پاس گئی، اندر سے کان لگا کر آواز سننے کی کوشش کرنے لگی، پر صرف اور صرف باجی کی چیخیں اور سسکیاں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ اتنے میں ابا نے دروازہ کھولا۔ مجھے سامنے دیکھ کر ان کے تیور اور بگڑ گئے۔ بولے کہ جا کر اپنی اماں کو بلاؤ، اور ہاں جلدی آنا۔ یہ کہہ کر ابا نے دروازہ بند کر دیا۔ اتنے میں اماں صحن سے اندر بھاگتی دروازے کی طرف گئیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور وہ بھی داخل ہو گئیں۔ ابا، اماں اور بڑی بہن گل افشا تینوں ہی دروازے کے اندر کچھ بات کر رہے تھے جو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے مجھے کوئی بھی یہ بات بتانا نہیں چاہتا، پر میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی تھی۔ ڈر بھی لگ رہا تھا، آخر ایسا کیا ہو گیا؟ تبھی میں نے دیکھا کہ اندرونی کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھنے لگی۔ ابا باجی کو چارپائی پر باندھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ باجی درد سے چلا رہی تھیں۔ اماں پاس کھڑی باجی کا سر پکڑے ہوئی تھیں۔ پھر وہ اماں، ابا، باجی تینوں کی چیخیں آنے لگیں۔ انہوں نے جلدی سے دروازہ کھولا، باہر بھاگے۔ میں نے دیکھا کہ کمرے سے 4-5 بھیانک قسم کے بچھو باہر کی طرف دوڑ رہے تھے۔ جلدی جا کر جھاڑو لے آؤ، ابا نے چیختے ہوئے کہا۔ میں نے جھاڑو لا کر ابا کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ ابا نے بڑی مشکل سے ان تینوں بچھوؤں کو مار دیا تھا، لیکن پھر ابا پریشان ہو گئے۔ یکدم ان کے چہرے پر عجیب سے آثار پیدا ہو گئے۔ کیا ہوا؟ تم پریشان کیوں ہو گئے؟ اماں نے ابا سے پوچھا۔ ارے ایک بیٹے کی رسم تو ہو گئی، اب دوسری کا کیا کریں گے؟ بچے تو ہم نے مار دیے،
कोई बात नहीं, अभी दूसरी का वक्त नहीं आया, जब वक्त आएगा तो देखी जाएगी। अम्मा ने ये बात अब्बा से कही तो मेरे पसीने छूट गए। अब्बा कौन सी रस्म की बात कर रहे हैं? ये भी तो जवान हो गई है। अम्मा मेरी बात सुने बगैर बोली, जवान तो नहीं हो गई है, लेकिन अभी तक किसी की नज़र नहीं पड़ी इस पर। अम्मा की बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। क्या अब्बा मुझे भी बिच्छू वाले कमरे में बंद करेंगे? मैंने सोचा था, और फिर अगले दिन जो हुआ इसने मुझे सारे सवालों के जवाब दे दिए थे। रात का वक्त था, हम सब लोग सहन में सो रहे थे। गर्मी के दिन थे, अंदर सोया नहीं जाता था। अजीब सी घुटन होती थी। हमारे घर के दरवाजे पर किसी ने 3-4 फायर किए। अब्बा भी बंदूक लेकर बाहर गए, लेकिन इससे पहले कि अब्बा किसी को ढूंढते या पूछते, 4 अफराद हमारे घर के अंदर दाखिल हो गए। अम्मा मुझे घसीटते हुए अंदर ले गईं और बोली, तू तो जाकर छुप जा मनहूस मारी, क्या हमारी नाक कटवाएगी? तभी एक आदमी जिसने बड़ी सी दाढ़ी रखी हुई थी आगे बढ़ा और उसने बाजी को उठाने के लिए दूसरे आदमी को इशारा किया। मैं अंदर वाली खिड़की से ये सारा मंजर देख रही थी। ये लोग डंडे के जोर पर बाजी को उठा कर ले गए। अब्बा और मैं कुछ भी नहीं कर सकते थे, ना ही अम्मा कुछ कर सकती थी। हम तीनों बेबस खड़े हुए थे। अब्बा के चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान था, जैसे उन्हें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं हो। मेरी बहन, मेरी बेटियां सब महफूज हैं। अल्लाह के हुक्म से तुम बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करो, आराम से जाकर सो जाओ। अरे मैं कैसे सो जाऊं? तुम कह रहे हो कि मैं आराम करूं। वो मेरी बेटी को उठाकर ले गया है, दरिंदा कहीं का। अल्लाह जाने वो उसके साथ क्या करेगा। कुछ नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बेटी के साथ निकाह करेगा। मुझे भरोसा है गुलाब खान के दुश्मन भी भरोसे वाले हैं, कम सिर्फ नहीं हैं। मेरे दुश्मन ये कह कर घर का दरवाज़ा बंद किया। मैं हैरान थी कि अब्बा इतने सुकून से कैसे सो गए। सुबह हुई तो एक और खबर इलाके में गर्दिश कर रही थी। गुलाब खान का बड़ा बेटा इस दुनिया से रुखसत हो चुका था और इसके मरने की देर थी कि शाम को बाजी भी हमारे घर आ गई। अम्मा ने इससे पूछा कि क्या हुआ था। तब बाजी ने अजीब बात बताई कि गुलाम खान ने अपने बेटे के साथ इनका निकाह कर दिया था, पर जब सुबह हुई तो गुलाब खान ने बताया कि औरंगज़ेब का इंतकाल हो गया है। ये बात बहुत दुख देने वाली थी। बाजी का निकाह तो हुआ था, पर वो एक ही दिन में बेवाह हो गई थी। मुझे इस बात की समझ नहीं आई थी कि अब्बा को इस सारे मसले में ना ही ज़रा सी परेशानी हुई और ना ही अब्बा ने अपने दुश्मनों से बदला लेने का सोचा, क्योंकि अब्बा बहुत ज़्यादा मुतमईन लग रहे थे। वरना तो पठान लोग अपनी बेटियों के लिए कई कई नस्लों तक दुश्मनी रखते हैं, और बात औरत की इज्जत की हो तो एक सेकंड में कई जानें हार जाती हैं। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ था। पूरे इलाके में गम और गुस्से की लहर थी। सब लोग मेरी बहन पर बातें कर रहे थे कि इसी ने औरंगज़ेब खान को कुछ किया है, वरना वो इतनी कम उम्र में कैसे वफ़ात पा सकता था। तब पापा ने एक अनोखा फ़ैसला कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी बेटी की जान चली गई तो तुम मेरी दूसरी बेटी ले जाओ। अब्बा की फराग दिली देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अब्बा इतनी फराग दिली से काम क्यों ले रहे हैं। सबसे पहला पहाड़ तो मेरे सर पर टूटा था। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी शादी आतिफ के अलावा किसी और से हो। मैं इसे शुरू से ही पसंद करती थी, वो भी मेरे लिए जान देता था। पर अब्बा के फैसले के आगे हम दोनों को सर झुकाना पड़ा था। मेरी शादी गुलाब खान के छोटे बेटे सरबुलंद खान के साथ तय कर दी गई थी। मेरे दिल में इतनी परेशानी थी कि बता नहीं सकती। जब मैं रुखसत होने को थी तो अम्मा ने मुझसे कहा, बेटी रुखसती से पहले तुम्हें एक रस्म करना पड़ेगी, और इस रस्म के लिए तुम्हारे अब्बा ने कहा है कि जान भी चले जाए तो कोई बात नहीं। मैं अब्बा की बात सुनकर हैरान हो गई। अम्मा, शादी की सारी रस्म तो ससुरालियों के सामने ही होती है। ये कौन सी रस्म है जिसके लिए तुम मुझे अंदर आने का बोल रही हो? मैंने अम्मा से पूछा। वो मुझे हाथ से पकड़कर अंदर ले गई थी। अब्बा भी सामने ही खड़े थे। अम्मा अब्बा दोनों मिलकर मुझे ऊपर वाले कमरे में ले गए। इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं था। सब लोग शादी की रस्मों में मसरूफ़ थे और औरंगज़ेब खान की वफ़ात के 1 महीने बाद होने वाली शादी से इतनी बड़ी तबाही हो गई, किसी ने सोचा भी नहीं था।
अब्बा मुझे ऊपर वाले कमरे में लेकर आए। मेरे सामने काले रंग का एक शॉपर खुला जिसमें सफ़ेद छोटे छोटे धब्बे थे। मैंने देखा वो धब्बे शीशे के थे और उनमें से काले बिच्छू नज़र आ रहे थे। उन्हें देखते ही मैं चीख उठी, अब्बा ये क्या है? ये जुल्म मुझ पर ना करो अल्लाह के लिए। तुमने बाजू के साथ भी यही किया था। बेटी मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, बाप हूँ तुम्हारा। मैं तुम्हारे भले के लिए ही सोच रहा हूँ। अब्बा अगर तुम भले के लिए सोच रहे हो तो ये क्या है? क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी जान क्यों लेना चाहूँगा? मैं तो तुम्हें मजबूत बना रहा हूँ। तुम फिक्र नहीं करो, बस तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो। इसके बाद तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा बाप इतना नाड़ी नहीं है, इसने भी बड़े काम किए हैं। और ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए बेटी। अब्बा ने प्यार से मेरी आंखों के सामने पट्टी बांध दी थी। मेरा दिल खौफ से कांप रहा था, पर मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म में 2 सुइयां चुभ गई हों। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। यूँ लग रहा था जैसे मुझे सांप ने डस लिया हो। जब मेरी आँख खुली तो अब्बा मेरे सामने खड़े थे। अम्मा भी मुस्कुरा रही थी। मुझे देखकर बोली, बस बेटी अब मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी रस्म हो गई। अल्लाह इस रिश्ते में बरकत डालेगा। तुम्हारे अब्बा तो कहते हैं कि इस रिश्ते के बाद, इस रस्म के बाद कोई बेटी नाखुश नहीं रहती। हम तो अम्मा अब्बा की बातों पर यकीन करने वाली सादा सी लड़कियां थीं। मैंने कहा, अम्मा जैसा आप कहो, मैं खुश हूँ कि मेरी जान बच गई, वरना तो ये बिच्छू देखकर मुझे लग रहा था कि मेरी जान चली जाएगी। अम्मा ने फिर से मुझे मेरी चादर उड़ाई और बाहर ले गईं। मेहमानों में किसी को पता नहीं था कि अंदर क्या हुआ है। सब लोग को मैं नॉर्मल ही लग रही थी, क्योंकि मैंने अपने चेहरे के तासुरात पर काबू पा लिया था। मुझे मेहमानों के दरमियान बैठाया गया था। मेरा निकाह औरंगज़ेब आलमगीर के बड़े भाई के साथ तय कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि अपने शौहर के घर आ गई, पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं बहुत परेशान थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने जा रहा है। मैं अपने कमरे में बैठी शौहर का इंतज़ार कर रही थी। जब वो अंदर दाखिल हुआ, उसकी पहली नज़र मुझ पर पड़ते ही चेहरे पर गुस्से के तासुरात आ गए। तो वही है जिसकी बहन ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया। मैं खामोश हो गई थी। मैं क्या कहती? मेरे शौहर ने मेरा घूंघट सख्ती से उतारा और मेरे चेहरे को जोर से अपने हाथों की मजबूत गिरफ्त से दबोच लिया। अपने हाथों की मजबूत गिरफ्त से दबोचते हुए बोला, तू ही है ना? तेरी ही बड़ी बहन ने मेरे भाई का कत्ल किया है। मैं क्या बोलती? मेरी आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे। मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बहन ऐसी नहीं है। वो एक जवान जहाँ मर्द को कैसे कत्ल कर सकती है? होगा इसका कोई आशिक जिसने मेरे भाई को रातों रात जान से मार दिया, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने अपने बाप से कसम खाई थी कि मैं तुम्हें हमेशा सारी ज़िंदगी अपने पैर की जूती बना कर रखूँगा। तुम्हारा बाप क्या समझता है कि वो महल्ले वालों की नज़र में अच्छा और शरीफ बनकर हमें नीचा दिखा देगा? मैं भी कहूँ कि हम इसकी बेटी उठाकर रातों रात ले आए और वो कुछ बोला भी नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? बेगैरत तो वो है नहीं। ज़रूर इसने कोई चाल चली होगी, ज़रूर इसने कोई चाल चली होगी हमारे साथ। पर तुम बिल्कुल फ़िक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जो तुमने सारी ज़िंदगी नहीं सोचा होगा। तुम्हें जूते की नोक पर भी नहीं रखूँगा। इसलिए मैं इस कमरे से जा रहा हूँ। सुबह उठकर सारे कमरे की सफाई तुम करोगी और सारे घर के कपड़े बर्तन सभी कुछ तुम साफ़ करोगी। मेरी माँ और बहनें आज के बाद इस घर का कोई काम नहीं करेंगी। अपने शौहर की ये नाइंसाफ़ी वाली बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। पर अब्बा ने कहा था कि इस रस्म से तुम्हारी हिफाजत होगी, बस तुमने डरना नहीं है। मैं खामोशी से बैठ गई। इसके बाद मेरा शौहर अपने कमरे से चला गया। तकरीबन सहरी के वक्त मेरी आँख खुली। मेरा शौहर मेरे सामने बैठा मुझे बड़ी अजीब नज़रों से घूर रहा था। मैं इसका इरादा समझ गई थी, पर मैं इसे क्या कह सकती थी? वो तो मेरा शौहर था, मगर असल भौचाल तो सुबह आया था। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब हम सोए, मेरी सास ने सूरज निकलने के साथ ही मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। ये तकरीबन सुबह के 8 बजे होंगे। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने मेरी सास खड़ी थी।
हाँ भाई, उठ जाओ तुम दोनों, खानदान वाले इंतज़ार कर रहे हैं, नाश्ते की मेज़ पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और हाँ, अपने शौहर को भी जगाकर नाश्ते की मेज़ तक ले आओ। मेरी सास की बात सुनकर जैसे ही पीछे मुड़ी, अपने शौहर के जिस्म पर नज़र पड़ते ही मैं हैरान रह गई थी। मुझे लगा जैसे मेरे सर पर आसमान गिरा हो। इसके मुंह से झाग निकल रहे थे और वो बेसुध बिस्तर पर पड़ा था। इसके हाथ ऐसे बिखरे हुए थे जैसे वो कोई बेजान लाश की मानंद है। मैंने इसे हिला जुला कर देखा, इसके सीने पर कान रखकर भी इसकी धड़कन महसूस करने की कोशिश की, पर वो इस दुनिया से जा चुका था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। या अल्लाह, क्या मेरे नसीब इतने बुरे हैं? मेरी बहन के साथ भी यही हुआ। हम लोगों से क्या गलती हुई, क्या खता हो गई कि तूने हमें इतनी बड़ी सज़ा दी? या अल्लाह, अब मेरे सब घर वाले मुझे यही कहेंगे कि तूने ही अपने शौहर को कत्ल किया है। अभी मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि मेरी सास दोबारा बाहर आ गई। इसने आकर मुझसे कहा, तू मेरे दूसरे बेटे की भी जान लेगी? जगा दे उसे और नाश्ते के मेज़ तक ले आ। मैं अपनी सास को क्या जवाब देती? वो खुद ही अंदर आ गई। उन्होंने जब अपने बेटे को देखा तो धाड़े मार मार कर रोने लगी। तेज में आकर मेरे बालों को पकड़ लिया और मुझे ज़ोर ज़ोर से मारने लगी। बोली कि तूने मेरे बेटे को फिर से मार दिया। पहले तेरी बड़ी बहन ने मेरे बेटे की जान ली और अब तू डायन बनकर इस घर में आ गई। मैं उन्हें क्या बताती कि मेरा इस सब में कोई हाथ नहीं? मैंने कुछ नहीं किया, मगर मेरी बात वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने लाख मिन्नत समाजत की, मगर सास कहने लगी कि अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। हम इस मामले को पूरी तरह तशवीश करेंगे। जब तक मेरे बेटे का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक तुम इस घर से हिल नहीं पाओगी। पर याद रखना, अगर तुमने मेरे बेटे को कत्ल किया हुआ तो ज़िंदगी भर तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, तड़पा तड़पा कर मारूंगी। मेरा तीसरा बेटा भी है, इससे तुम्हारी शादी करूँगी। मैं इस औरत का हौसला देखकर हैरान थी कि अपने 2 बेटों को कुर्बान करने के बाद अब तीसरे की शादी भी मुझसे सिर्फ इसलिए करना चाहती है ताकि इसका इंतकाम पूरा हो जाए। लेकिन मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। अब्बा और इन लोगों की अल्लाह जाने बरसों पुरानी क्या दुश्मनी चली आ रही थी, पर मैंने गुलाब खान की बीवी से कभी ज़िंदगी भर कलाम नहीं किया था। खैर, जो होना था वो होकर ही रहा। मैं भी अपने नसीब का इंतज़ार करने लगी कि किस्मत क्या फ़ैसला करती है। मेरे शौहर की लाश को उठा दिया गया। मुझे गम इसलिए नहीं था क्योंकि इसने रात को जो मुझसे बातें कही थी वो किसी भी औरत का दिल चीरने को काफ़ी थी, और ऐसे मर्द के मरने पर कौन परेशान होगा। फिर भी वो मेरा शौहर था तो मुझे थोड़ा बहुत अफसोस ज़रूर हुआ था, पर अभी तो मैंने इसके साथ एक दिन ही गुजारा था। मुझे ज़्यादा गम नहीं था। मेरे शौहर की तदफीन के बजाय इसे हस्पताल ले जाया गया। मेरे शौहर का अभी पोस्टमार्टम होना बाकी था, जबकि इस दौरान मेरी अम्मा मेरी ससुराल आ पहुंची। मेरी सास के मिन्नत करने लगी कि अल्लाह के लिए मेरी बेटी को जाने दो, इसका कोई कसूर नहीं है। मेरी सास कहने लगी, कसूर सारा तुम्हारी बेटी का है, इसने मेरे बेटे को मारा है। जबकि मैं तो ये खुद नहीं समझ सकती थी कि मैं कैसे इनके बेटे की जान ले सकती हूँ। मैंने तो इसे अपने हाथ से पानी का गिलास तक नहीं पिलाया था, फिर ये सब कैसे हो गया? मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। फिर मेरी अम्मा भी मेरे साथ ही इसी घर में बैठ गई। कहने लगी कि मेरी बेटी के नसीब का जो फैसला आएगा मुझे मंजूर होगा। मैं अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकती, वो भी इस सूरत हाल में जब इसकी शादी दुश्मनों में हुई। अब्बा इस सारी सूरत हाल में खामोश थे। मुझे इनकी पुरस्कार खामोशी डरा भी रही थी और तजस्सुस में मुब्तला भी कर रही थी। अब्बा ने शायद अम्मा से कहा हो कि तुम भी अपनी बेटी के घर चली जाओ ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए। बिल आखिर मेरे शौहर की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, मगर मुझे किसी ने नहीं बताया कि इसमें क्या लिखा था। मुझे मेरी सास ने अपने घर जाने का हुक्म दिया। इसके चेहरे पर मेरे लिए नफ़रत थी। बोली कि डॉक्टर को तो नहीं पता होगा, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये सारी चालें तुम्हारी हैं। मुझे अपने शौहर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में हरगिज़ नहीं बताया गया था। मैं घर आ गई। घर आकर मैं अपने बिस्तर पर ढेर हो गई।
इतने दिनों की थकावट थी जो कि मैं घंटों में नहीं उतार सकती थी। दिल चाहता था हमेशा के लिए आंखें मूंद लूं। अब्बा कमरे के अंदर दाखिल हुए। बेटी, तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना। इन दुश्मनों जालिमों से अल्लाह ने इनके जुल्म का बदला लिया है और ये मेरी मासूम बेटियों को अगवा करके ले गए थे। बस इसीलिए इनके साथ ये सब कुछ हुआ है। मैं अब्बा की तरफ देखकर बोली, अब्बा, बात इतनी सादा नहीं है जितनी आप बता रहे हैं। मेरी बात सुनकर अब्बा भी चौंक पड़े। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अपने अब्बा पर शक कर रही हो? अब्बा, मैं आप पर शक नहीं कर रही। मुझे यकीन है कि सब के पीछे आप ही का हाथ है। क्या मतलब बेटी, तुम्हें अपने बाप पर यकीन नहीं? मेरे अब्बा हंसते हुए बोले थे। अब्बा, तुम्हारी हंसी बता रही है कि ज़रूर इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, वरना ऐसा क्या है कि हमें हाथ लगाते ही हमारे मर्द मर जाते हैं। मेरी बात सुनकर अब्बा हंसे और बाहर चले गए। मैंने अब्बा से किसी बात का जवाब नहीं मांगा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अब्बा कोई बात करने अम्मा के पास जा रहे हैं। मैं इनके पीछे पीछे उठ आई थी। अम्मा को भी इस बात का नहीं पता था कि आखिर मेरे और बाजी के शौहर की मौत कैसे हुई। बात सिर्फ अब्बा को पता थी। मैं अब्बा की बातें सुनने के लिए इनके कमरे के बाहर खड़ी हो गई थी। दरवाजे में से आवाज़ साफ आ रही थी। अब्बा अम्मा से मुखातिब थे। देखो गुलाई, मैंने भी कैसा बदला लिया है गुलाब खान से, जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। इसके दोनों बाजू मैंने काट कर रख दिए। मेरा कोई बेटा नहीं था तो इसे ऐसा लगा कि जैसे वो मुझसे बदला लेगा, पूरी ज़िंदगी मेरे नाक में दम करेगा, बेटियों को बहा कर ले जाएगा, तो हमेशा इसका पड़ला मुझ पर भारी रहेगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। कैसे? अम्मा ने सहमी हुई आवाज़ में पूछा। कैसे? अरे बुद्धू औरत, बेवकूफ़ औरत की अकल वाकई जूते में होती है। मैंने तुम्हारे सामने सब कुछ किया था, क्या तुम्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आया? नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। गुलिस्तान खान, बताओ क्या किया है तुमने? अम्मा मेरी गुस्से से उठकर खड़ी हो गई थी। मैंने अपनी बेटियों के जिस्म में जहर भर दिया है। अब कोई भी इनसे शादी नहीं कर सकता। शादी करेगा तो इसी रात मर जाएगा। मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगा, शहर में जाकर नौकरी करवाऊंगा और यहाँ के बेटों से भी ज़्यादा आगे लेकर जाऊंगा। अब्बा की ये बात मेरे जहन पर किसी बिल्ली के कूदने के मारे लगी थी। मुझे लगा जैसे अब्बा ने खड़े खड़े इन लोगों को कत्ल कर दिया हो और साथ हमें भी नाकारा बना दिया हो कि अब हम किसी से शादी नहीं कर सकती। मुझसे ये सुनकर रहा नहीं गया। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। अब्बा, तुम ही मुजरिम हो हमारे। तुमने हमारे घर उजाड़ दिए। अब कौन हमसे शादी करेगा? तूने सुन लिया है? तू फिर ये भी जान ले कि इस शहर का असर सिर्फ और सिर्फ 10 साल का है। तुम लोगों की उम्र ही क्या है? अभी तो तुम लोग 16-16 साल की हो। नहीं चाहता कि मेरी बेटियां कम उम्र में ब्याही जाएं, और अब तो कोई मेरी बेटियों से ब्याह करेगा भी नहीं। मेरे अब्बा खुशी से झूम रहे थे। मुझे अब्बा की बातों से बहुत अजीब सा डर लग रहा था कि जैसे अब्बा अपनी दुश्मनी में अपनी हिकमत, जैसे अफजल इल्म का इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं वहाँ से भागकर शहर आ गई। आज मैं तुम्हारे बंगले पर काम करती हूँ, पर मुतमईन हूँ कम अज़ कम मुझे ये तो पता है कि मेरी वजह से किसी की जान नहीं जाएगी। ये कहकर ज़रकना तो खामोश हो गई, पर मेरे जहन के 14 तबाक रोशन हो गए। मुझे नहीं पता था कि इन दो छोटे छोटे निशानों के पीछे इतनी बड़ी दास्तान होगी, इतनी बड़ी दास्तान होगी, इतनी बड़ी दास्तान, इतनी बड़ी दास्तान, इतनी बड़ी दास्तान, इतनी बड़ी दास्तान।